Hi everyone, my name is Manish Chouhan and chemistry is my profession. आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे हैव सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिस, दे हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। सर कड़वा टेस्ट किस में होता नहीं सर? वो बिटर गॉड और करेले में। ओके, so you will see what base they have bitter taste, right? Now how to detect whether the given solution is acidic or basic? So I've told you we will use acid base indicators. जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर हम कौन सा इस्तेमाल करते थे? लिटमस सॉल्यूशन। और सिंथेटिक इंडिकेटर हम कौन सा इस्तेमाल करते थे? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्लिथीन। Sir, a solution which give different color in acidic medium and different color in basic medium, they are called acid base indicator, right? चलिए, ये लिटमस, अगेन वही स्लाइड। सर लिटमस और द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल। सर ये तो आपने लाइकन वाले प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे तो कलर बिकम्स व्हाट? Red. It changes to what? Blue in basic medium. Blue in basic medium याद रखिएगा, ठीक? मैं अपने बच्चों को पता कैसे कहता हूँ, भैया चींटी काटती है तो लाल हो जाता है, बोलते हैं हाँ, तो वो आपके अंदर क्या इंजेक्ट करती है? सर एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। मनीष सर कहाँ के रहने वाले? हिमाचल। सर उनके बहुत सारे बागीचे, बागीचे के वो क्या मालिक? तो एप्पल में विच एसिड इज प्रेजेंट? मैलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड, राइट? सो लिटमस सॉल्यूशन इन बेसिक मीडियम, द कलर चेंजेस टू ब्लू। नेक्स्ट सर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, इट बिकम्स येलो इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक मीडियम, राइट? देन कम्स phenolphthalein. Phenolphthalein in acidic solution is colorless, and in basic solution its color is pink. Phenolphthalein original color is colorless. Now let's see chemical properties. Chemical properties में, अच्छा इसको शुरू करने से पहले एक चीज और बताऊं। आप एक काम करिएगा, स्कूल में जाइएगा और आपके जो कबर्ड में वहां पे डाइल्यूट NaOH पड़ा होगा। NaOH को जब आप थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेके व्हेन यू शेक, राइट, तो आपके थंब के साथ लग जाएगा, ठीक है? उसको फिर पानी से धोना। जैसे आप पानी से धोगे ना तो आपको महसूस होगा स्लिपरी टच, सोपी टच। मैंने देखा यार, NaOH को मैंने शेक किया और पानी से धोआ और वो कैसा आ रहा था? स्लिपरी टच, soapy touch. You know why? Because NaOH is a base and oil present in my skin. When base and that oil, when they react, they form soap. They form soap. That is why you feel what? A soapy touch or a slippery touch. Understood? Now let's talk about chemical properties. सबसे पहले NaOH, सबको मालूम है स्ट्रॉन्ग एल्कली। व्हाट इज एल्कली? वाटर सॉल्युबल बेस। स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग मींस which completely dissociate. Now NaOH and this is CO2. Sir, this is base. Non-metal oxide, they are acidic in nature. Acid and base, they combine, they form salt and water. Can you tell me which salt? Na2CO3 plus H2O. Understood, Bobo? KOH plus CO2. What will you get? K2CO3 plus H2O. Can you balance this equation for me? Sodium 2, sir 2. Carbon 8, carbon 8. Now oxygen 2, hydrogen 2. Oxygen 2 or 2, 4. So 3 plus 1, 4. Now this side, KOH 2, sir 2. Carbon 8, hydrogen 2, 2. Oxygen 4, 4. Right?
So this is again very very important. ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये ऐसे सोचिएगा. NaOH is base. CO2. CO2 when reacts with water it form carbonic acid. Non-metal oxides, they are what? Acidic in nature. Right? Metal hydroxide, they are basic in nature. When they combine, they will form salt and water. Understood? Now, next. They neutralize acids. Suppose if I give you CaOH whole twice, this is base. Sir, base. Metal oxide, metal hydroxide, ammonium hydroxide. When reacts with acid, they form salt and water only. So calcium hydroxide plus HCl, what will you get? CaCl2 plus H2O. सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? कैल्शियम 1 क्लोरीन कितने हैं सर? 2. बेटर राइट 2. हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 और 2 4. सर 2. ऑक्सीजन 2. इक्वेशन बैलेंस. Then you can take anything. You can take FeOH whole thrice. You can take FeOH whole thrice plus HCl. Sir, base and acid form FeCl3 plus H2O. Can you balance? FeCl3 3. Hydrogen how many? 6. 3 2 just 6. 3 oxygen. Balance. So this everyone knows that base reacts with acid and they form salt and water only. देखिए इस चैप्टर को आपको बड़ी डिटेल में समझना है. एक बार समझ में आ जाएगा तो जो बाकी के चैप्टर है वो आप आराम से कर लेंगे. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स को डायरेक्ट मत शुरू करिए. यहां से पहले आप एक एक चीज को सीखिए. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कौन कैसे रिएक्ट करता है. आप सुन के फिर आपको याद हो जाएगा. पहले कॉन्सेप्ट समझिए. अंडरस्टैंडिंग से 40% आता है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अनदर 40% आएगा. 40 + 40 दैट मेक्स 80%. और जिस दिन आप 80% अचीव कर लेंगे उसके बाद आपका लॉजिकल ब्रेन खुलेगा एंड दैट इज 20%. देन ओनली यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100. राइट? 100% स्कोर ऐसे नहीं अंडरस्टैंड करके यू विल स्कोर. नहीं, पहले यू अंडरस्टैंड द थिंग, देन यू प्रैक्टिस द थिंग एंड देन यू विल. फिर एक फील आता कि हाँ ये लॉजिकली यू हैव टू गिव आंसर्स. राइट? चलिए अब आ जाइए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, NaOH इज बेस. इससे आपका चैप्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा. अब आपसे 4th चैप्टर भी इसी में कवर हो रहा है. यू मान के चलिए देयर आर ओनली 2 पेजेस, वो यही कवर होने वाले हैं. तो आर यू रेडी? सबसे पहले NaOH is what? A strong base. सर किस काम आता है? It is used as a reagent to detect basic radicals, metallic ions. आपको कौन से याद रखने तो जनरली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. आपको पहला याद रखना है Fe2 पॉजिटिव. फिर आपको याद रखना है Fe3 पॉजिटिव. फिर आपको याद रखना है Cu पॉजिटिव. Fe2 पॉजिटिव का कलर डर्टी ग्रीन. Fe3 पॉजिटिव का कलर रेडिश ब्राउन. Cu2 पॉजिटिव का कलर सर पेल ब्लू. ये 3 याद हो गए. किसी ने पूछा विच आयन इज देयर? ब्लू आयन इज देयर. Cu2 पॉजिटिव. सर डर्टी ग्रीन फेरस. सर रेडिश ब्राउन. सर रस्ट देखा आपने? रस्ट का कलर क्या होता है सर? इट इज ब्राउन, रेडिश ब्राउन. तो फेरिक आयन इज देयर. राइट? फेरस इज डर्टी ग्रीन. सूखे हुए पत्ते होते हैं उनका जैसे कलर होता है डर्टी ग्रीन. दैट इज फेरस. राइट? अब अगले आ जाइए. Zn2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव. They when reacts with NaOH, the color is white. बस आपको इतना सा याद रखना है. बस इतना सा. आपका काम डन. You can easily score 5 marks. सिंपल. देखो क्वालिटी चाहिए,
क्वांटिटी नहीं चाहिए, ऐसा लिखो एग्जामिनर फुल मार्क्स। सर मैं तो पूरी कहानी लिख के आऊंगा। अरे पूरी कहानी नहीं लिखनी भैया, टू द पॉइंट लिखना है। ससुरा वहां जाके तुम इतनी इतनी कहानी लिख दोगे तो एग्जामिनर फिर ऐसे दिखाता है, भैया ये देखो, ये नोटबुक देखो, इस बच्चे ने किसकी फोटो बना दी। वो फोटो बना देते हैं, फिर उसे रोने वाली शक्ल बना देते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, नो वन इज गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स फॉर दैट, राइट? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। तो शुरुआत करते हैं फेरस सल्फेट से। तो रेडी, देखिए पहले क्या लिखा, FeSO4। FeSO4 के नीचे एक्वस जरूर लिखिएगा, क्योंकि FeSO4 को किस में घोलेंगे, पानी में। और फिर बाद में उसमें क्या मिलाया, NaOH। क्या बनेगा, Fe और OH। सर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, फेरस, सो यू विल गेट FeOH होल ट्वाइस। अरे सर आपने कहा था ये तो इनसॉल्युबल होते हैं। दिस इज डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, अंडरस्टूड? व्हाट विल यू गेट, Na2SO4। अब देखिए लिखना कैसे है। When you take small amount of NaOH and when you add in FeSO4, you will get dirty green precipitate. When you add small amount is just 2 ml, 3 ml, 4 ml, just approximately this much, right? But when you add an excess means now you fill entire test tube with what, NaOH. That is called excess. Now when you add excess NaOH, what will happen? Dirty green precipitate, they are insoluble. Precipitate, dirty green precipitates, they are insoluble. बात समझ में आई? What is more important? This word is very, very important. Please remember, ferrous in NaOH, dirty green precipitate, on adding excess, they are insoluble. Understood? Next. Now I am giving you FeCl. Now I am giving you FeCl3. FeCl3, what will you write? Aqueous. It's a brown colored. It is a brown colored and it is deliquescent substance. Or said deliquescent substances are those which absorb moisture from the atmosphere and they become moist and they dissolve in that solution and form saturated solution. Deliquescent substance. Ferrichloride, yellow. Now what you do is you add NaOH, डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, FeOH होल थ्राइस, यहाँ एरो लगाइएगा, प्लस what will you get, NaCl3. Now what will you write, reddish brown PPT. Understood, Bobo? Now, arey sir, you have done one mistake. What mistake? Can you tell me my mistake? What mistake I have done? जल्दी बताओ। सर आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, बोर्ड आपको नहीं छोड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले OH कितने हैं, 2, यहाँ 2 लिख दो। सोडियम कितने हो गए, 2, इक्वेशन बैलेंस। जब ये इक्वेशन आए, यहाँ OH कितने हैं, सर 3 है, चुपचाप 3 लिख दो। सोडियम कितने हो गए, 3 लिख दो। इक्वेशन बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज मस्ट। अब सर इसमें क्या करूं, इसमें एक्सेस NaOH मिला दो। एक्सेस NaOH मिलाओगे तो क्या होगा बेटा, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रिमेन इनसॉल्युबल। ओके, रेडिश ब्राउन पीपीटी they are insoluble. Which word is important? They are insoluble in excess. कितने रिएक्शन याद हो गए, 2। फेरस और फेरिक NaOH में दोनों ही क्या होते हैं, एक्सेस में इनसॉल्युबल। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर सल्फेट, यहां क्या लिखना है, AQ। क्या मिलाया, NaOH। अब क्या होएगा सर, CuOH होल
ट्वाइस प्लस Na2SO4। सबसे पहले बैलेंस, OH कितने, 2, सोडियम कितने, 2, इक्वेशन बैलेंस। नाउ यू नीड टू पुट अ एरो ओवर हियर, पेल ब्लू PPT। Now when you add an excess NaOH, okay, it is remain insoluble. Blue PPT, they are insoluble. The keyword here is insoluble, right? Okay, CuSO4 NaOH, sir, pale blue PPT. When you add excess NaOH, pale blue PPT, insoluble. यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 4 भी खत्म। बोर्ड का पूछेगा, बोर्ड पूछेगा ऑब्जर्वेशन फुल मार्क्स स्कोर करिए, राइट। नेक्स्ट, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, व्हेन यू ऐड NaOH, सर आप एक गलती कर रहे हैं, क्या एक्वस नहीं लिखा, ओके सर, CaOH होल ट्वाइस प्लस NaNO3। अब यहाँ OH कितने, 2, चुपचाप लिख दो 2, सोडियम 2, 2 नाइट्रेट 2, 2। यहां पे लिखिएगा वाइट PPT, वाइट, अरे वाइट PPT। नाउ पूरी किताब में एक वर्ड बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे, एक्सेस NaOH। तो व्हाट यू हैव टू राइट, अरे सर दिस इज तो वीक एल्कली, राइट, तो यू हैव टू राइट white precipitate, they are sparingly soluble. White precipitate, what, sparingly soluble. Sparingly soluble means पूरी तरह से तो नहीं घुलेगा, हल्का सा आपको से लगेगा कि घुल गया है, तो we write which word, sparingly soluble, right? Calcium nitrate, okay? Next, अरे सर ये तो व्हाइट कलर अभी आपने बताया, कैल्शियम, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, दे ऑल गिव यू व्हाट, व्हाइट कलर। आपको बस 3 कलर याद करने थे, वो आपने याद कर लिए। नेक्स्ट, जिंक नाइट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक नाइट्रेट किससे रिएक्ट कराया, NaOH के साथ। सर क्या बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, साथ में क्या बनेगा, NaNO3। बैलेंस करो, सर ये 2, सोडियम भी कितने हो गए, 2, नाइट्रेट भी कितने हो गए, 2। व्हाट यू हैव टू राइट, वाइट PPT। स्कूल में टीचर्स लिखवाते हैं जिलेटिनस वाइट PPT, देयर इज नथिंग हार्म इफ यू राइट जिलेटिनस वाइट PPT। नोजी आती, नोजी, ठीक है, वो वैसे दिखाई देते हैं, ये नोजी टाइप के, जिलेटिनस वाइट PPT। तो मेरे लिए जिलेटिनस वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वाइट प्रेसिपिटेट, राइट। पर इफ यू राइट जिलेटिनस वाइट PPT, इट्स ओके। नाउ इफ यू राइट excess NaOH, now when you add excess NaOH, white precipitate, they are soluble in this white precipitate, they are soluble in excess, why? Now see, in board exam you will get this much, but you should know this also. Now ZnOH whole twice, what else you have, sir, NaNO3, what are you doing in this, sir, we are adding what, NaOH. So you will see, okay, what will you see, sodium zincate is formed, Na2ZnO2. You better write in this way, better, no need to get confused. Zn whole twice, on adding NaOH, excess word you write here, and then you write Na2ZnO2, sodium zincate plus water. अच्छा, जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे सोडियम जिंकेट पता ही नहीं था होता है क्या, मुझे ना जिंकेट नहीं पता था। जिंकेट होता है ZnO2 2 माइनस, और सोडियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस। अब
भैया यहाँ कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां, इनकी शादी करनी है, एक लड़का है, एक और लड़का चाहिए। अब देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, व्हाट विल यू गेट? Na2ZnO2, व्हाट इज दिस कॉल्ड? सोडियम जिंकेट। कई बार ये क्वेश्चन आया कि सोडियम जिंकेट का कलर क्या होता है? कलरलेस। सोडियम जिंकेट इज व्हाट? अ कलरलेस, राइट। आप लैब में पहले थोड़ा सा NaOH डालेंगे जिंक नाइट्रेट में, हल्का आपको व्हाइट लैटस पीपीटी मिलेंगे। व्हेन यू फिल दैट एंटायर टेस्ट ट्यूब विद व्हाट? NaOH, एक्सेस NaOH, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो व्हाइट पीपीटी बने वो घुल गए, एकदम घुल जाते हैं, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, शानदार। तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? सोडियम जिंकेट। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, PbNO3 whole twice plus NaOH। सर लेड नाइट्रेट सॉल्युबल इन एक्वस, एक्वस तो लिखना ही है यार, आप एक्वस लिखिए, बेटर है। गिव्स PbOH whole twice plus NaNO3। Now balance this equation, 2OH 2OH, Na2 2 NO3 2 2 balance। Sir, you have not written this arrow. Now what you have to write? Sir, again this is white PPT. This is white precipitate. It is better when you write, avoid short forms, you better write white precipitate. Right? Instead of writing PPT, better you write white precipitate full spelling. Okay? My advice, see, if you are scoring above 98, 99, और मान लीजिए आप 100 स्कोर कर रहे हैं, तो 100 वाली नोटबुक ऐसी होती है जो हर कोई देखना पसंद करता है। एक कि 100 आए बच्चे के, जरा दिखाओ, तो उसमें देखते हैं कि कोई गलती ना हो, ऐसी कोई गलती ना हो, उसको हम 2 बार 3 बार हम देखते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो 100 की फिर 10 आंखें 100 आंखें देखेंगी तो कोई ना कोई गलती निकालने की कोशिश करेगा। बेटर है कि आप परफेक्ट लिखें, राइट। तो there is no harm if you write white precipitate, but I suggest you better write entire spelling white precipitate. Okay, when you add excess NaOH, so it is white precipitate. White precipitate is soluble. It is soluble. Sir, why? Because PbOH all twice on reacting with NaOH excess, it formed सोडियम प्लम्बाइट प्लस H2। यार एक बार इक्वेशन बैलेंस करना, मैंने तो बैलेंस की नहीं। सर 2 सोडियम PB1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 2 4 ऑक्सीजन 2 2 4, इक्वेशन बैलेंस। सर पीछे चलिए, आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं की। Na2 2 2 ZN1 ऑक्सीजन 2 2 4। So what should I write? 2 here, 4 hydrogen, 2 और 2, इक्वेशन बैलेंस। आपको इक्वेशन बैलेंस तो करनी ही है। तो यहां तक आपने क्या देखा? What is the moral of the story? NaOH is strong alkali. Sir, it dissociate complete. Amount of OH negative in the solution is what? The concentration of OH negative is high, right? Ferrous के साथ dirty green, FeOH whole twice dirty green precipitate, FeOH whole thrice reddish brown, CuOH whole twice. Sir, pale blue PPT, they are not alkali. Alkalis are water soluble. NaOH is what? Alkali. Understood? Now, whenever in board exam they ask you to distinguish between calcium nitrate, zinc nitrate और lead nitrate, जब ये zinc, calcium और lead को distinguish करने के लिए if they ask you, please better use ammonium hydroxide. Don't use, avoid NaOH, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से यू कैन क्लियर, मतलब आप आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सर कैसे? आइए, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एल्कली, राइट? इट कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स? बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। concentration of OH negative is less. Now, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे शुरुआत करें बोलो? चलिए FeSO4 से। What is this written?
FeSO4 क्या लिखूं? एक्वस। क्या मिलाऊं? NH4OH, राइट। अब क्या बनेगा? सो FeOH होल ट्वाइस बनेगा। फिर अमोनियम, अमोनियम सल्फेट देखिए कैसे लिखते हैं, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। OH कितने? 2। आप यहाँ क्या लिखें? 2। अमोनियम आयन कितने हो गए? 2। इक्वेशन बैलेंस। व्हाट यू हैव टू राइट? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। अब आप इसमें क्या मिला दीजिए? एक्सेस में मिला दीजिए NH4OH। तो आप क्या बोलेंगे? डर्टी ग्रीन पीपीटी। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट दे आर इनसॉल्यूबल। तो फेरस और फेरिक के लिए यू कैन यूज एनी रिएजेंट। यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपकी इच्छा करे। दोनों के केस में ऑब्जर्वेशन इज रिमेन सेम। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इन एक्सेस, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट दे आर इनसॉल्युबल। बोलो इतनी बात से सहमत? आगे चलने का इक्वेशन बैलेंस। बैलेंस FeCl3 सर डेलिक्विसेंट येलो सॉलिड, सर पानी में मिलाया, NH4OH के साथ मिलाया, क्या बन जाएगा? FeOH होल थराइस प्लस 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 अमोनियम क्लोराइड। बैलेंस करो। OH कितने? 3। यहाँ क्या लिख दो? 3। NH4OH कितने? 3। 3। बोलो बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सर एरो नहीं लगाया, नीचे नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सर एक्सेस में, एक्सेस NH4OH में कौनो ससुरा का मिलाएं? एक्सेस NH4OH। सर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। व्हाट? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। तो ये तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेनी नहीं है। आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट होने वाला? 4th एनालिटिकल केमिस्ट्री की होने वाला है, राइट। सिम कॉपर सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आएगा, बताता हूं। ये क्या लिखा? कॉपर सल्फेट। यहां क्या लिखा? एक्वस। बेटा जी, अच्छा मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर इसका तो ब्लू कलर होता है, आप बोल रहे ब्लू पीपीटी। बेटा आप ना रसना का पैकेट फाड़िएगा, ठीक है, और उसको घोलिएगा लाल कलर वाला, वो सॉल्यूशन होगा, वो घुल जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिपिटेट में आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है और वो नीचे बैठ जाता है। ये कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या मिलाया? NH4OH मिलाया। मिलाया, ये क्या बन जाएगा? CuOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट। बोलिए क्लियर है? यहां पर आप क्या करेंगे? पेल ब्लू पीपीटी, पेल ब्लू पीपीटी। OH कितने? 2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2। इक्वेशन बैलेंस। नाउ लिसन द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। Now when you add excess NH4OH, excess blue precipitate, पूरा अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट changes to or dissolve, pale blue precipitate dissolve and form deep blue inky solution। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेरा बच्चा? पेल ब्लू पीपीटी, पेल ब्लू पीपीटी डिसॉल्व। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ये डिसॉल्व। ये क्या है? डिसॉल्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्म, उससे भी इंपॉर्टेंट,
डीप ब्लू इंकी सॉल्यूशन। बेटा ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। डीप ब्लू सॉल्यूशन, अगर आप उससे पूछेंगे सर दो वर्ड चूज करिए, तो मैं लिखूंगा प्रेसिपिटेट, वो डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें, दे फॉर्म सॉल्यूशन, तो डीप ब्लू इंक की सॉल्यूशन मिलता है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वेशन में पक्का आएगा। व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो इक्वेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इसका ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें, नेक्स्ट। अब आज ये मैंने आपको बोला था कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में यू ऐड व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट। बच्चे आंख बंद करके लिख देते हैं, नो आपको ये लिखना ही नहीं है। अब देखिए आपको लिखना क्या है, सर क्या लिखना है, क्या लिखना है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट में जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, बेटर वर्ड हियर इज टू राइट नो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। व्हाट डू हैव टू राइट, नो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। आपको कोई रिएक्ट पिएक्ट वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आप सिंपली ये लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इट विल नॉट फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। बाकी भूल जाइए क्या कहानी है, आपको क्या मालूम, आप तो उसमें डाल रहे हैं और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे, राइट। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है, ये OH नेगेटिव आयंस कम देता है। तो कैल्शियम आयन और OH नेगेटिव आयंस, OH negative ion are insufficient to form white precipitate. Understood? So, but you will write no white precipitate formed, right? Now, next is zinc nitrate. Zinc nitrate में क्या add करेंगे? Ammonium hydroxide. What will you get? Sir, we'll get zinc hydroxide plus ammonium nitrate. Now balance this equation, 2OH, 2 and 2. You will write white PPT, white precipitate. Now when you add an excess, NH4OH, on adding excess NH4OH, zinc hydroxide white precipitate are soluble. This is soluble. Zinc nitrate is soluble in excess अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए बात से सहमत। अब आ जाओ क्या, PbNO3 होल ट्वाइस, गाना बन गया, NH4OH। नाउ व्हाट विल यू गेट, PbOH होल ट्वाइस, ओके, एंड यू विल राइट अमोनियम नाइट्रेट। बेटा जी OH कितने दो, अमोनियम कितने दो, इक्वेशन बैलेंस। अब देखो याद करने का तरीका, Pb मतलब पुलिस चौकी, P मतलब पुलिस चौकी, चौकी मतलब चौक, PbOH है चौकी वाइट PPT, चौकी वाइट precipitate on adding small amount of ammonium hydroxide, chalky white precipitate formed. When you add excess ammonium hydroxide, it is insoluble. Chalky white precipitate, they are insoluble. Understood मेरा बच्चा? So calcium nitrate will not give you white precipitate. Zinc will give you white precipitate. Lead also give you white precipitate. But zinc is soluble. These zinc hydroxide white precipitate, they are soluble in excess ammonium hydroxide. And in this case, chalky white precipitate is insoluble. Right? So with this, what we have done, we have done lead nitrate, and with this we have finished with what? Reaction of NaOH, ammonium hydroxide, NaOH base, ammonium hydroxide base, and I have told you the reaction with
various salts, right? Both are used to detect basic radical identification of basic और metallic ions. तो याद रखिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.